Good evening, everyone, and welcome in this exclusive webinar of Union Budget 2024-25. Although this is an interim budget, however, it has a it has its own impact on all our economy as well as in the financial market. So, firstly, we'll look at financial market technically. Then after that, we'll discuss the budget throughout. So we'll start the session right now. I'm sharing my screen here. Let's start with technical outlook of the financial market, equity market. So let's start with first Nifty. This is a Nifty 50 chart. This is a Nifty 50 chart, and in today's session only, Nifty made a fresh live high at 22,126 level. However, we have seen the selling pressure or profit booking at higher levels, and once again, Nifty closed at around 21,853 today's end of day. So if you see a Nifty's monthly chart, here we can see a Nifty maintaining its height of high bottom formation. However, in the last month, Nifty formed a doji kind of candle pattern on a monthly chart, which shows that some kind of a volatility or fatigueness in the upward trend. However, once again, if you see a weekly chart here, after 2 weeks of retracement, once again Nifty made a fresh height of higher bottom formation in the latest week. So which shows that Nifty once again Nifty retrace Nifty gives shallow retracement here. If you see, this is a special character of a strong uptrend. The main characteristic, if you see a retracement here, so every time Nifty retraced shallow and once again bounce back on it resume its uptrend. So which shows that strong uptrend is there in the market. The major support zone for the Nifty is recent low, which is 21,130, and if you see after that the trend reversal level, which is 21,100, if it reaches that level, then only our trend will change from positive to neutral, and next support will be at 20,200 level. So this is once again Nifty gave a strong reversal and resume its uptrend on a weekly chart in this session in this week. So our next projection for the Nifty, it's somewhere around, if you see a projection here, so that's just a minute. Yeah, I'm using a Fibonacci. So this is Nifty. Actually, Nifty 22,300 is a 16.8% retracement, and Nifty sustaining taking resistance at this level. If it reaches that level and sustain above that, then our next target would be 23,800, and after that 26,000 level. So strong rally, after strong rally, Nifty has since more to come, एंड ये जो अप ट्रेंड है वो बरकरार रहने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेजर अभी आपने देखा कि वीकली चार्ट पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रिट्रेसमेंट के बाद एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक आया निफ्टी में, और जो कि प्रीवियस वीक का हाई भी उसने रीच करके क्लोज किया है. The next chart is Nifty Bank. The Nifty Bank actually underperforming the benchmark Nifty. On a monthly scale, if you see a Nifty Bank, so here the inside bar candle is there, and on a weekly chart, the Nifty Bank is sustaining at its 20-week simple moving average. And once again, Nifty Bank also made a height of higher bottom formation in this current week, in the latest week. And current closing of the Nifty Bank is 45,970. तो जो सपोर्ट जोन है निफ्टी बैंक का वो कहीं पे 44,400 के आसपास आ रहा है. वहां पे एक सपोर्ट मेजर सपोर्ट बनेगा निफ्टी बैंक को आने वाले समय में. वो स्टॉप लॉस लेके आप निफ्टी बैंक में यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं ऊपर की तरफ 48,000, एंड देन आफ्टर दैट 50 to 52,000 तक निफ्टी बैंक जाने की चांसेस है. वहां पे अप ट्रेंड टारगेट है. अगर आप रियल आउट परफॉर्म देखोगे तो निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में है. लास्ट
मार्च के बाद आपने देखा रहेगा एक तरफा रैली निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप काउंटर्स में हो चुकी है और हो रही है, और वो ट्रेंड लगातार बरकरार है। यहाँ पे निफ्टी मिड कैप अभी भी फ्रेश लाइफ हाई पे है ये वीक में भी, और निफ्टी स्मॉल कैप में भी यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। तो निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप ये अपने फोकस में होना चाहिए, रडार पे होना चाहिए आने वाले दिनों में भी। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी और आपको यहाँ पे दिख सकती है। अगर हम सेक्टर की बात करें ये आफ्टर बजट, तो जो टॉप आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है वहां पे अगर आप देखें तो एक निफ्टी ऑटो ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे दिया है। आफ्टर 4 वीक्स ऑफ कंसोलिडेशन निफ्टी ऑटो गिव्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इन दिस करंट वीक। आफ्टर यूनियन बजट ऑल्सो इट सस्टेन दैट ब्रेकआउट। एंड यहाँ पे आप डेफिनेटली आपकी नजर होनी चाहिए, यहाँ पे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स जैसे काउंटर आपको यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट जो सेक्टर आएगा वो है निफ्टी पीएसयू बैंक। यहाँ पे भी अच्छी खासी अपवर्ड रैली हमने देखी है, और ये 52 वीक हाई पे अभी भी निफ्टी पीएसयू बैंक अभी भी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो काउंटर्स है यहाँ पे आप डेफिनेटली नजर बनाए रखें। नेक्स्ट जो सेक्टर आएगा हमारा वो है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड बरकरार है, लगातार हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन बरकरार है वीकली चार्ट पे। तो स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लार्सन एंड टुब्रो जो कि अभी फिलहाल में रिट्रेस हुआ है, वो देख सकते हैं। एजी इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा, ये काउंटर्स आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो निफ्टी एनर्जी। यहाँ पे भी 2 वीक्स ऑफ आफ्टर 2 वीक्स ऑफ कंसोलिडेशन गेव अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। एंड यहाँ पे आप बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है निफ्टी पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यहाँ पे भी सेम मोमेंटम बरकरार है पिछले अक्टूबर 2023 के बाद। यहाँ पे एक तरफा रैली अभी भी आप देख रहे हैं, और हमेशा लगातार हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन ऑन वीकली चार्ट यहाँ पे लगातार रैली चालू है। यहाँ पे आप पीएफसी, एनएमडीसी, एनएसपीसी, एनबीसीसी, ये काउंटर्स डेफिनेटली आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न अभी भी आने के चांसेस है। और लास्ट में जो है वो है निफ्टी मेटल। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ था पिछले 4 वीक से, और इस वो उसका ब्रेकआउट ये वीक में हमें मिला है। तो निफ्टी मेटल्स में आप डेफिनेटली ध्यान रखें आने वाले दिनों में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी, यहाँ पे आप ये सेक्टर्स, ये स्टॉक्स इस सेक्टर्स में से आप डेफिनेटली देख सकते हो। आप बजट का थीम ध्यान में रखते हुए हमने एक पोर्टफोलियो जनरेट किया है 5 स्टॉक का, जिसमें आपको 10 to 15% अपसाइड हमें एक्सपेक्टेड है। वो जो स्टॉक्स है वो मैं आपको तुरंत बताता हूँ। उसमें है फर्स्ट स्टॉक इज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें दिखने को मिली है, और यहाँ पे एक फ्रेश लाइफ है ये स्टॉक में ये वीक में और आज बनाया है। ये स्टॉक अभी फिलहाल 261 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म बना सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो अपना पोर्टफोलियो में है वो एक आईटी लीडिंग आईटी कंपनी विच इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पे 4,000 के टच करने आफ्टर टू टू इयर्स यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, और स्टॉक अभी 3,966 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 4,000 का एक माइनर रेजिस्टेंस है, जो अगर वो ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम आपको आने वाले समय में टीसीएस में दिख सकती है। यहाँ पे सेक्टर सपोर्ट भी आपको ये स्टॉक को है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है विंध्या टेलीलिंक्स। यहाँ पे विंध्या टेलीलिंक्स अगर आप देखें तो एक सॉसर काइंड ऑफ कैंडल पैटर्न, सॉसर प्राइस पैटर्न यहाँ पे स्टॉक में बन रहा है। वो अभी स्टॉक चल रहा है 2,660 के आसपास। यहाँ पे भी आप पोर्टफोलियो में ये स्टॉक डेफिनेटली आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ प्राइस पैटर्न यहाँ पे 2,200 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और इसका ब्रेकआउट आने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है एनआरबी बेयरिंग। आफ्टर 3 वीक्स ऑफ रिट्रेसमेंट ये स्टॉक फिर से एक बार अप ट्रेंड में आ चुका है, और हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे
बन चुका है ये स्टॉक्स में। ये स्टॉक्स अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 375 के आसपास। यहाँ पे भी आप ये स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और लास्ट जो स्टॉक है वो है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे ये स्टॉक 52 वीक हाई पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 390 के आसपास ये स्टॉक्स है। लगातार ये स्टॉक अप ट्रेंड में बरकरार है और ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा आपको रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो ये जो 5 स्टॉक्स है, फर्स्ट इज इंजीनियर्स इंडिया, देन टीसीएस, देन विंध्या टेलीलिंक्स, देन एनआरबी बेयरिंग एंड लास्टली टाटा पावर। ये जो 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो ये आज हम आपको बजट के थीम में आपको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये स्टॉक अपना ये पोर्टफोलियो आप बना के रखिए। अपसाइड 10 to 15% मिनिमम आप इसमें ये पोर्टफोलियो में पकड़ के चल सकते हैं फॉर द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। So that's all for technical outlook. And now I'm handing over to Harshit for fundamental aspects. Thank you. Over to you, Harshit. Yeah. So thank you, Vidyan sir, for the technical part. I hope my screen is visible to all of you. Yes. Yes, Harshad, you can go ahead. So, so thanks for joining in. Yeah. So today we are here to discuss the Union Budget 2024. So this budget is presented for the financial year FY25, and this was an interim budget, not a full-fledged final budget. So what does it mean by an interim budget? So interim budget is presented in the election year, where central government is going into an election, a model code of conduct, and that budget is presented for the time period before forming a new government. So नई गवर्नमेंट बनने से पहले ये बजट प्रस्तुत किया जाता है। सो इस बार का इंटरिम बजट था। इसमें काफी शॉर्ट स्पैन में ये बजट कवर हुआ है, जिसमें कुछ गिने चुने मुद्दों को ही एड्रेस किया गया है। बट बट स्टिल वी विल डिस्क्लोज but still we will explore various aspects of this budgets, and more importantly we are going to learn this budget in a different perspective. We will be looking at the numbers and the story behind the numbers, how the government has evolved over the years. So this will be a key learning from this session today. So before moving towards that part, let us discuss the few announcements or the highlights which were discussed into the FY25 budget. So first of all, for railway, it was a very big announcement. So railways के लिए लगभग 40,000 रेल बोगीज, यानी 40,000 रेल के जो डिब्बे हैं वो अब वंदे भारत ट्रेन में कन्वर्ट किए जाएंगे। सो हम जब भी रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो ट्रेडिशनल नॉर्मल रेल का डिब्बा और वंदे भारत का डिब्बे में बहुत ज्यादा अंतर है। तो 40,000 रेल बोगीज जो है अब वंदे भारत ट्रेन में कन्वर्ट की जाएगी। सो एक ट्रेन में औसतन 15 बोगीज होती है, तो 40,000 बोगीज को अगर हम देखें तो उससे लगभग 2700 नई वंदे भारत ट्रेन भारत में आएंगी। एट प्रेजेंट 22,700 के आसपास भारत में ट्रेन है। उसमें से गवर्नमेंट ने अभी जो अनाउंसमेंट किया है 2,700 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जाएगी। सो इट इज 10%। सो वंदे भारत का पेनिट्रेशन अब भारत में 10% होगा। सो अगेन अ वेरी बिग अनाउंसमेंट, and of course to make it 100% penetration it will take more years, but at present in this budget it is announced by it is 10% penetration is announced. Then green energy के related एक announcement थी।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही उसी नेक्स्ट डे में एक नई योजना का आरंभ किया है, प्रधानमंत्री सोलर योजना. सो in that scheme, government aims to have rooftop solar over the 1 crore households in India. So 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगवाया जाएगा एंड दिस विल हैव सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट. सब्सिडी के रूप में इसको प्रमोट किया जाएगा. आरईसी लिमिटेड को, जो लिस्टेड कंपनी है, उसे इस प्रोजेक्ट का अपॉइंटी किया गया है. द एग्जीक्यूशन विल बी मैनेज थ्रू आरईसी लिमिटेड. सो दिस इज वन थिंग टू वॉच फॉर. देन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक अनाउंसमेंट आई है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो अफोर्डेबल हाउसेस है, जो पहले 1 करोड़ थे बनाने का प्लान था, वो अब बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है. सो आने वाले 5 साल में 2 करोड़ नए एडिशनल अफोर्डेबल हाउसेस बनाए जाएंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. सो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर भी यहाँ पे फोकस है. एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम दी एविएशन. सो एयरपोर्ट सेक्टर से के लिए भी एक अच्छी न्यूज है. भारत में अभी जो एयरपोर्ट्स की संख्या है वो लगभग 75 से 80 के बीच में है. ये आने वाले सालों में दुगने किए जाएंगे. 150 एयरपोर्ट्स भारत में स्थापित किए जाएंगे. इसका ये मुख्य कारण यह भी है कि जो लीडिंग एयरप्लेन कंपनीज है इंडिया में, एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, और लेटेस्ट कॉम्पिटिटर अकासा एयर भी हो, इन सारे एयरप्लेन ऑपरेटर्स ने तकरीबन 1000 नए प्लेन्स के ऑर्डर दिए, यानी 1000 नए एयरक्राफ्ट्स भारत में आएंगे. सो इन 1000 एयरक्राफ्ट्स की ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए डेफिनेटली एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होना जरूरी है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एयरपोर्ट्स की संख्या भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बढ़ाई जाएगी. देन ग्रीन एनर्जी के लिए भी कुछ अपडेट्स थे. यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया में खड़ा करने का एक बड़ा चैलेंज है. चैलेंज इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द की टास्क ऑफ द गवर्नमेंट टू हैव डिसेंट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. सो उस क्षेत्र में काम करने के लिए, उस क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंसीडर किया है. सो यूथ विल बी एम्पावर्ड विद द टेक्निकल स्किल्स regarding the installation, maintenance, and the supply of this ecosystem. So green energy के लिए यहाँ पे भी फोकस रहा है. Then Ayushman Bharat cover is now extended to the Anganwadi and Asha workers as well. So this is again a major update regarding into the health sector. In Startup India, there is an announcement that PM Mudra Yojana has sanctioned 43 lakh crores loans worth 22.5 lakh crores. So लगभग 22.5 लाख करोड़ के लोन्स 22.5 लाख करोड़ के लोन्स यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. देन टूरिज्म का भी एक अहम मुद्दा बजट में डिस्कस हुआ है. सो रिसेंटली मालदीव्स एंड लक्षद्वीप का जो मुद्दा बीच में आया था, सो प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो प्रोमोटेड द टूरिज्म in his moves. So that is also addressed in this budget. So the budget has favored to domestic tourism and projects for port connectivity, tourism infra and amenities. So this was also a key theme discussed into the budget. So these are some charts. ये कुछ charts है. हम numbers के ऊपर भी जरूर जाएंगे. We will also discuss the numbers, but before going towards the numbers, तो गवर्नमेंट के लिए पैसे कहाँ से आते हैं और किस प्रकार से वो खर्च होते हैं, इसका ये पिक्टोरियल चार्ट है. सो ज्यादातर हमारी जो इनकम है वो बोरोइंग से आती है. बोरोइंग्स हैज बीन वन ऑफ द की कंपोनेंट इन आवर रेवेन्यू पोर्शन. Then corporate tax, income tax, and goods and service tax. These are some receipts from which government gets revenue. And on the expenditure side, there are various expenditure including capital expenditure, defense, subsidies,
शेयर्स ऑफ द स्टेट, जो राज्यों को टैक्सेस रिफंड किए जाते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. These are the numbers. So relates to the fiscal deficit. So fiscal deficit इस बार के बजट में 5.1% एम किया गया है. FY24 का बजट, यानी जो लास्ट साल बजट पेश किया गया था, उसमें 5.8 फिस्कल डेफिसिट था. अब वो घटकर 5.1 किया गया है. सो अगर हम प्रीवियस डिकेड देखें, यानी 2014 से लेके 2020 तक का, तो फिस्कल डेफिसिट हमारे जीडीपी के 3.5 से 4.5% तक होता था. बट कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने अपनी बैलेंस शीट बढ़ाई. गवर्नमेंट के बैलेंस शीट में यहाँ पे डेट बढ़ा, और उसके चलते फिस्कल डेफिसिट जो है वो डिसिप्लिन आउट ऑफ हो गया. बट as we have all moved out of the COVID, so यहाँ पे definitely fiscal deficit को कंट्रोल करने का गवर्नमेंट का इरादा है. एंड गवर्नमेंट aims to bring fiscal deficit to 4.5% by FY26. These are other few charts. So tax receipts as a percentage of GDP has been 12% over last few years. So these are stagnant. And even the trends in the receipt to center has shown improving trends. कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके ऊपर अच्छी खासी चर्चाएं मार्केट में होती है, तो वो अब 15 लाख करोड़ है, इंक्लूडिंग दी ग्रांट फॉर एड इन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट. जो कोर कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 11,11,111 करोड़ रखा गया है. सो दिस आर द ट्रेंड्स. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नंबर्स. हम अब बजट के जो नंबर्स है उनके ऊपर एक नजर डालते हैं. Yeah, so I hope this Excel sheet is visible to all of you. So हमारा इस बार का let me just zoom in. Yes. So हमारा FY25 का बजट जो राइट मोस्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, जो इस बार प्रेजेंट किया गया है, उसकी साइज है 47 लाख करोड़ 65,000, 47,65,000 करोड़. ये भारत गवर्नमेंट वित्तीय वर्ष 2025 में खर्चा करेगी. ये पिछले साल में 45 लाख करोड़ था, और 2018 में ये 21 लाख करोड़ था. तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है. अब जो की पॉइंट टू डिस्कस है वो ये है कि अगर हमारा साइज ऑफ बजट बढ़ा है, तो क्या वो बोरोइंग से बढ़ा है, या गवर्नमेंट ने अपने टैक्स एस्टिमेट्स को बढ़ाया है. सो दीज आर टू वेज टू इंक्रीज द साइज ऑफ बजट. सो तो यहाँ पे पॉजिटिव बात ये है कि बोरोइंग्स इस बार कम कर दी गई है. पिछले साल क्लोज टू 18 लाख करोड़ की मार्केट बोरोइंग्स गवर्नमेंट ने एम की थी. इस बार वो घटाकर 16,85,000 करोड़ ही कर दी है. एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव. And in fact, the revenue receipts now are estimated towards the 30 lakh crores. So 26 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ तक रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ पे एस्टिमेट की है इन FY25 बजट. एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर हम नजर डालें तो एक्सपेंडिचर साइड में दो चीजों पे खर्चा होता है. एक या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सो गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस कलेक्शन होते हैं, जो भी नॉन टैक्सेस रेवेन्यू होते हैं, तो उन रेवेन्यू को लाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. तो हमारी जो आय है रेवेन्यू रिसिप्ट से, वो 30 लाख करोड़ है, और उस 30 लाख करोड़ को कमाने के लिए गवर्नमेंट को 36 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं. सो बेसिकली हम 6 लाख करोड़ के रेवेन्यू डेफिसिट में है. सो जो 14 नंबर की लाइन है 6,53,000 करोड़, वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है. इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो बेसिकली किसी भी कंपनी का हम रिजल्ट देखते हैं, तो लेट्स से करोड़ का टर्नओवर है
और अगर 5,000 करोड़ का खर्चा उस टर्नओवर को लाने में किया जा रहा है तो 5,000 बचे हुए 5,000 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि 30,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू रिसीट्स के लिए गवर्नमेंट को 36 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पे स्पेंड करने पड़ रहे हैं। सो अगेन आवर बजट इज इन रेवेन्यू डेफिसिट। बट इसमें एक पॉजिटिव बात क्या है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट ये ओवर द इयर्स कम होते जा रहा है। इसके ग्राफ्स भी हम देखेंगे। और दूसरा जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो इस बार के बजट में 11,11,000 करोड़ रखा गया है। प्रीवियस ईयर में वो 10 लाख करोड़ था। सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम क्या है, तो जो भी रोड्स, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कैपिटल गुड्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जिसको इकोनॉमी में बढ़ावा देने में मदद मिलती है, वो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइन आइटम से किया जाता है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लेज अ वेरी गुड रोल। एंड जनरली इकोनॉमिस्ट डू से, अगर सरकार अपने साइड से 1 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करती है तो ओवर द ईयर्स उस 1 रुपये के जरिए 3 से 4 रुपए की आय गवर्नमेंट को मिलती है। सो ये विजनरी साइड का एक्सपेंडिचर है। और अगर हम देखें सिर्फ 2020 के बजट में ये 3,40,000 करोड़ था। आज लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास छूने तक नंबर आया है। सो इन अ स्पैन ऑफ 5 बजट्स ये नंबर 4 गुना बढ़ा है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी इंक्रीज्ड फोकस रहा है ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो 30 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू रिसीट है, जो गवर्नमेंट की आमदनी है, उसमें से 26 लाख करोड़ टैक्स रेवेन्यू है और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्लोज टू 4 लाख करोड़ है। Fiscal deficit, as we just discussed, is pegged at 5.1% for this year. इसी को अगर हम परसेंटेज के रूप में देखें तो अगर गवर्नमेंट की आमदनी 100% है तो उसमें से 63% जो आमदनी है वो रेवेन्यू यानी टैक्सेस से आती है। 37% गवर्नमेंट की आमदनी बोरोइंग्स यानी कर्जा लेकर आती है। और उसी आमदनी को अगर हम एक्सपेंडिचर के रूप में देखें तो ब्याज देने में 25% हमारा पैसा खर्च होता है, 23% हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं और लगभग 75 से 76% हमारी जो आमदनी है वो रेवेन्यू अकाउंट में स्पेंड होती है। सो ये इसका परसेंटेज वाइज ब्रेकअप है। अब ये नेक्स्ट चार्ट आप सभी को जो दिख रहा है, इसमें जो अलग अलग डेफिसिट्स हैं वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितने हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो फिस्कल डेफिसिट एज वी जस्ट मेंशन इट इज नाउ पेग्ड एट 5.1% फॉर FY25। पीक जो था वो 2022 के बजट एस्टीमेट में था। ऑफ कोर्स इट वाज अ कोविड ईयर, तो वो दैट वाज 6.8% ऑफ द जीडीपी। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो बहुत ही एग्रेसिवली कम हुआ है टुवर्ड्स 2%। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर हम देखें तो उसमें भी और ज्यादा एग्रेशन हमें देखने को मिलता है, दैट इज एट 0.8% ऑफ द जीडीपी। सो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफी हेल्दी है। ये एक और नजरिया है। सो गवर्नमेंट का जो हमारा बजट है 47,65,000 करोड़ का, तो वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में स्पेंड किया जाता है, अलग अलग सेक्टर्स में स्पेंड किया जाता है। तो उसके ऊपर ये एक ग्लांस है। तो राइट मोस्ट साइड में इस बार का जो बजट है उसका ब्रेकअप दिया है। तो सबसे ज्यादा खर्चा हम ब्याज पे करते हैं, 25% हमारा बजट ब्याज में जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा खर्चा ट्रांसपोर्ट पे होता है, वो हमारा 11.5% है। इसमें काफी ग्रोथ देखने को मिली है ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में। FY27 में ये सिर्फ 5.5% था। देन रूरल डेवलपमेंट के ऊपर 5.6% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर होता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो 2018 में सिर्फ 0.5% था, वो अब बढ़कर 4.3% हुआ है। फर्टिलाइजर सब्सिडी 3.4% है। IT एंड टेलीकॉम 2.4% है। एंड जो
एग्रीकल्चर है सेक्टर, उसके ऊपर 3.1% स्पेंड होता है। सो ये कुछ की सेक्टर्स है जिनके ऊपर स्पेंडिंग होती है। 2017 से 25 के बीच के अंतर को अगर हम देखें तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा बदलाव आया है। 1.1% से लेके अब 4.3% तक टोटल एक्सपेंडिचर ये हुआ है। बाद में आईटी एंड टेलीकॉम में भी ग्रोथ है। देन यूनियन टेरिटरीज हैज आल्सो सॉ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। Then here are some other important charts. So इसमें हम ट्रेंड के बारे में जानने वाले हैं, किस तरह से गवर्नमेंट जो है ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ है, हमारा बजट इवॉल्व हुआ है, और क्या ये ट्रेंड पॉजिटिव है या नहीं। सो ये रेवेन्यू का ट्रेंड है, यानी गवर्नमेंट किस किस सोर्सेस से रेवेन्यू आती है। तो इसमें ज्यादा मेनली 6 सोर्सेस है। एक टैक्स के जरिए, दूसरा नॉन टैक्सेस के जरिए, तीसरा जो गवर्नमेंट के खुद के दिए हुए लोन से उनसे रिकवरी करके, चौथा मार्केट बोरोइंग्स यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जीसेक एंड ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनके जरिए, एंड अदर बोरोइंग्स। तो अगर हम देखें रेवेन्यू साइड में, तो tax revenue over the years has remained stagnant. It is now 55% of our total budget. जो मार्केट बोरोइंग्स है वो 2022 में बढ़कर 28% हो गई थी, वो अब घटकर 25% तक हो रही है। यानी जो प्रीवियस ट्रेंड होता था 2017 से लेकर 18 के बीच में, उसी ट्रेंड के ऊपर अब रिवर्ट हो रहा है ये हमारा बजट। अब इसमें लॉन्ग टर्म में अगर हमें पॉजिटिव बजट देखना है, अच्छा बजट देखना है, या अच्छा बजट किसे कहते हैं, तो अच्छा बजट ये वो होता है जिसमें रेवेन्यू पोर्शन में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो। सो अभी के लिए हमारा ये जो पोर्शन है वो 62% है। ये पोर्शन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, उतना ही गवर्नमेंट को बोरोइंग्स के ऊपर कम निर्भर होना होता है। ये थी रेवेन्यू की साइड। अगर हम एक्सपेंडिचर के ऊपर बात करें, सो जो हमारा बजट की जो आमदनी है वो कहाँ कहाँ पे खर्चा होती है, तो उसके ऊपर हम नजर डालें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी उस टैक्स रिसिप्ट्स को लाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसके ऊपर 52% हम स्पेंड करते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर 25% का स्पेंडिंग होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 23% का स्पेंडिंग होता है। इसमें नोटवर्दी चेंज क्या है, रेवेन्यू साइड में तो हमने देखा रेवेन्यू रिसीव्ड, मार्केट बोरोइंग्स जो प्रोफाइल है वो स्टेबल है ओवर लास्ट 9 इयर्स। बट एक्सपेंडिचर साइड में बड़ा बदलाव क्या आया है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे बजट के 63% होता था 2017 में, वो अब घटकर 52% हुआ है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 12% होता था हमारे बजट के, वो अब बढ़कर 23% हुआ है। सो इसमें काफी अच्छी ग्रोथ आई है। यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की 10% की सेविंग है वो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ने ट्रांसलेट की है। इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे स्टेबल है, 24 से 25% के रेंज में हमारे हर साल के बजट में ये रहा है। सो दिस इज अ की ट्रेंड इन आवर बजट। So this was the update regarding the budget. अब हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो एज विज्ञान सर हैज जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द लेवल्स ऑफ द स्टॉक। सो ये हमारे कुछ रिसेंट बजट पिक्स है। सो नंबर 1 इज टीसीएस, नेक्स्ट वन इज विंध्या टेलीलिंक्स, थर्ड वन इज एनआरबी बेरिंग, फोर्थ वन इज टाटा पावर, एंड लास्ट वन इज द इंजीनियर्स इंडिया। सो इस बार के बजट में हमने देखी बोरोइंग्स का टारगेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है, और उसी के चलते स्टॉक मार्केट बॉन्ड मार्केट में जो यील्ड्स है उनमें भारी गिरावट आई है। सो जब भी यील्ड्स में गिरावट आती है तो टेक्नोलॉजी और आईटी के स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे टीसीएस हमारा एक पिक है। देन विंध्या टेलीलिंक्स जो टेलीकॉम
केबल्स बनाता है, टेलीकॉम स्पेस में काम करता है और इसका ईपीसी में भी काम है। तो दिस स्टॉक इज ऑल्सो वेल पॉइज्ड टू बेनिफिट फ्रॉम द रिसेंट गवर्नमेंट ट्रेंड्स। देन एनआरबी बेरिंग, जो बेरिंग्स बनाने वाली कंपनी है, सो यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन्स का काफी बड़ा ऐलान है। एंड एज दिस कंपनी मेक्स द बेरिंग फॉर ऑटोमोबाइल एज वेल एज अक्रॉस द एप्लीकेशंस, so NRB bearing will also benefit from these announcements. Then Tata Power, as we just discussed, the rooftop solar announcement from the government. So Tata Power has already begun this work across the country. So rooftop solars Tata के आज भी मार्केट में है, एंड गवर्नमेंट की तरफ से ये पुश मिलने के बाद हम पावर सेक्टर में अच्छी खासी तेजी हम देख सकते हैं। उसमें से टाटा पावर एक हमारा प्रेफरेबल पिक है। एंड लास्टली इंजीनियर्स इंडिया। सो इंजीनियर्स इंडिया इज इनटू द कैपेक्स थीम। सो गवर्नमेंट के जो भी ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इंजीनियर्स इंडिया देखती है। ये एक पीएसयू कंपनी है। सो दिस आर आर 5 स्टॉक्स फॉर द बजट। So I hope all these things are clear to all of you. जो नंबर्स हमने डिस्कस किए हैं, जो की ट्रेंड इन द बजट हमने डिस्कस किया है, वो सभी आप सभी को क्लियर होगा।